Hello students, today we are going to discuss excess and deficit demand. So let's start first with your deficit demand. So what is the meaning of deficit demand? So deficit demand is basically a condition when your aggregate demand is actually less than what it has to be. So let's start with its definition first. That deficit demand is the state in which aggregate demand is less than aggregate supply at full employment level in the economy. एक ऐसी सिचुएशन जब एक आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, किससे? आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, और आपकी इकोनॉमी क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे है. सो दैट सिचुएशन इज नोन एज डेफिसिट डिमांड. Right? You can understand this with the help of this graph. Here you can see on x-axis we have income, output and employment, and on y-axis we have aggregate demand. So this is my aggregate supply curve, right? And this is my AD curve. Okay. अब मेरा AD यहाँ होना चाहिए and my AS should be here and this should be my point of equilibrium at full employment level. Fine. But because मेरी इकोनॉमी में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया. मेरी इकोनॉमी में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेरा एडी कर्व शिफ्ट होके नीचे आ गया. फाइन. सो ये जो गैप है, दिस गैप इज बेसिकली माय डिफ्लेशनरी गैप. मेरा एग्रीगेट डिमांड यहाँ होना चाहिए था, बट मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या है? यह है. तो ये जो है, दिस इज माय डिमांड जो नहीं है इकोनॉमी में, राइट? दिस इज माय डेफिसिट डिमांड. फाइन. एंड दिस गैप इज बेसिकली नोन एज डिफ्लेशनरी गैप. फाइन. Now you can see that at point F, you can see that there is one point F. So this is the point of equilibrium because here AD is equals to AS, but this is as per underemployment, right? Underemployment equilibrium कहाँ हो रहा है? Point F पे. So deficit demand हमें समझ आ गया. The deficit demand is a situation जब हमारा aggregate demand क्या है? कम है, और हमारे एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ज्यादा है. जब एग्रीगेट डिमांड हमारी सफिशिएंट नहीं है कि क्या हो पाए? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो पाए, राइट? सो दैट सिचुएशन इज नोन एज डेफिसिट डिमांड. जो गैप होता है बिटवीन एक्चुअल एंड व्हाट शुड बी द डिमांड, दैट इज योर डिफ्लेशनरी गैप एंड दिस इज योर डेफिसिट डिमांड. फाइन. I guess this much is clear to you all. Now let's see some important observations of this deficit demand. So the first one is a positively sloped line represents the supply of demand for goods and services in the economy, which is a sum of consumption and investment. That means जो एक positively sloped line थी, that was your AD curve basically. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? AD curve, right? And your AD curve is basically the summation of कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. एडी कर्व क्या है? एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन है which represent demand for goods and services. एडी कर्व ये तो बताता है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है, और एडी कर्व सम टोटल किसको आता है? योर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, द 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन, दैट इज योर एएस कर्व which represents the supply of goods and services, right? 45 degree slope line क्या है? हमारा AS curve है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? रिक्वायर्ड है. और AS कर्व किसका सम होता है? योर कंजम्पशंस एंड सेविंग्स. नेक्स्ट जो पॉइंट E था, एज वी हैव डिस्कस्ड, वो क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, बिकॉज एट दैट पॉइंट हमारा AD किसके इक्वल था? AS के. बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एडी कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स. दैट इज फ्रॉम AD to AD1. वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन माय
in our graph. EG is the deflationary gap. Yes, because of your deficit demand जो एक gap बना है, so that is basically your deflationary gap. And point F, that indicates your underemployment equilibrium. Okay, so these were the important observations of the graph. Now let's see that what are the reasons behind the deficit demand. Okay, the causes of deficit demand. The first one, it occurs due to fall in aggregate demand. अगर हमारी इकोनॉमी में जितना प्लान डिमांड था उतनी डिमांड नहीं हो रही है, so उस वजह से भी क्या होगा, हमारा जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या एक्चुअल डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फाइन. सेकेंड, अगर हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, या फिर हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल कर जाए. अगर कंज्यूमर्स अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और कम पोर्शन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो हमारे एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, फॉल हो जाए, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगी, फॉल करेगी, तो क्या करेगी, जनरल पब्लिक को अपना एक्सपेंडिचर उन जगहों पे बढ़ाना पड़ेगा, सो जिसकी वजह से वो कंजम्पशन पे कम स्पेंड करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाएगा. फोर्थ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, फॉल हो जाए, क्यों हो सकता है, या तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोरोइंग का वो बढ़ गया है, या फिर जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न था किसी भी इन्वेस्टमेंट से वो घट गया, सो यू विल थिंक व्हाई टू इन्वेस्ट देयर. फाइन. फिफ्थ, अगर आपका एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, फॉल हो गए ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ड्यूटी. अब आपके एक्सपोर्ट्स ड्यूटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो गए हैं, घट गया, तो उससे भी क्या होगा, हमारा डिमांड घट जाएगा, हमारा डिमांड वो मीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना भी पहले जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमारे इन्वेंट्री में एडअप हो जाएगा. फाइन, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी उससे. नेक्स्ट, अगर हमने इंक्रीज कर दिया इंपोर्ट ड्यू टू डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, अब हमने इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया, उससे भी क्या होगा, हमारे पास सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड इतनी है नहीं, so that will also create your deficit demand. Okay, now let's move to the next one, that is excess demand. So let's start first with the definition. It is, although it is actually opposite of what is deficit demand. Deficit demand में हमने देखा था अभी that जब हमारा aggregate demand क्या हो जाए, कम हो जाए, और aggregate supply क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है गुड्स एंड सर्विसेज की. अब एक्सेस डिमांड में क्या हो जाएगा, इट्स ऑपोजिट, कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. दैट मीन्स अब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वेयर डिमांड इज मोर, बट हमारी जो सप्लाई है दैट इज नॉट सफिशिएंट. हमारी इकोनॉमी में हमारे जो जनरल पब्लिक है वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बट हमारी जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है कि वो उस डिमांड को क्या कर पाए, मीट कर पाए. सो इन दैट केस इट इज नोन एज एक्सेस डिमांड. और ये क्यों होता है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए इकोनॉमी के अंदर, व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज अगर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, सो इस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा डिमांड एक्सेस हो जाता है. नाउ यू कैन सी दिस ग्राफ, देखो इट शुड बी लाइक दिस, थोड़ा सा इसमें हो गया है, इट शुड बी लाइक दिस, राइट, इसको ऐसे यहाँ पे टच करेगा एट दिस पॉइंट. सो दिस इज माय एएफ, दिस इज माय एडी एंड दिस इज माय एडी 1, यहाँ पे पूरा गिवन है. सो दिस पॉइंट ई इज बेसिकली योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे हमारा एडी कर्व किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एएस कर्व को, बट हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल डिमांड कितनी है, इतनी है. फाइन. सो ये जो पॉइंट है जहां पे इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दिस मच इज द डिमांड, सो ये क्या है, हमारी एक्सेस डिमांड है. एंड दिस इज आर, एंड दिस ईएफ इज बेसिकली आर इन्फ्लेशनरी गैप. फाइन. I hope this much is clear. Now let's see some important observations of excess demand. The first one,
that it's a positive straight line, वो जो क्या represent करेगा हमारा AD curve, which is the sum total of basically your consumption and investment. Second point, the 45-degree positive straight line, that will represent your AS, and that is the sum total of consumptions plus my savings. Third point, that the point E is considered as full employment equilibrium, because at point E your AD is equals to ES. That we have also seen that at point E your economy is at full employment equilibrium, because at point E your aggregate demand is equals to your aggregate supply. Point number 4, because of increase in investment हमारा जो AD curve है वो क्या हो जाएगा, ऊपर shift हो जाएगा, that will shift upwards from AD to AD1. And the EF जो हमने देखा था gap between what actual demand is and what it was supposed to be, that is your inflationary gap. तो उन जो दो demands के बीच का gap है, that is your inflationary gap. Now let's see what are the reasons for excess demand. The first one is rise in AD demand. अगर आपके एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में डिमांड एक्सेस में हो जाएगी. सेकेंड, अगर लोगों ने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, या फिर अपनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, so in that case also the people will start consuming more or they will start demanding more. Third point, if government has increases its expenditure, अगर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. so in that case they will start consuming more, क्योंकि उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बच जाएगी. so they will do more of consumption. so in that case also there will be excess demand in the economy. Next, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अब एक्सपेंडिचर किन किन रीजन से बढ़ रहा है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सो नाउ पीपल कैन इजीली बोरो एंड कैन इन्वेस्ट, या फिर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट हैज इंक्रीज्ड. सो इन दोनों ही केस में क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा. फिफ्थ, अगर आपका एक्सपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी. अब एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो उसका मतलब क्या है, मेजर पोर्शन बाहर जा रहा है, राइट. अब अपने जो होम के लिए है या अपने डोमेस्टिक कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिर और प्रोड्यूस करना चाहिए, बट आपने और प्रोड्यूस करा नहीं है, तो फिर इन दैट केस ऑल्सो जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अगर हमारे इंपोर्ट्स क्या हो गए, फॉल हो गए, पहले कितना सारा सामान था जो बाहर से आ रहा था, बट अब नहीं आ रहे, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो गई है, बढ़ गई है. सो इन दैट केस ऑल्सो एग्रीगेट डिमांड तो उतनी रही है, बट सप्लाई क्या हो गई हमारी, कम हो गई. सो इन दैट केस ऑल्सो हमारी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सेस में हो जाएगी. सो दीज आर द बेसिक रीजंस जिससे हमारा एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप होता है. आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, but still if you have any doubt or any query, you can just share your query in the comment section. Fine. Thank you for today.